Last week we saw about this amazing father called Caleb. पिछले सप्ताह एक अद्भुत पिता के बारे में हमने समझा जिनका नाम था केलब. Say Caleb. आप कहे केलब. Yeah, Caleb, the meaning of Caleb is a faithful dog. Dog. You know, dogs are very faithful. That's why we have them as pets. केलब का अर्थ होता है कि एक विश्वास योग्य कुत्ते को हम पालते हैं घर पे. Did you see this big, bold man, Caleb? लेकिन यहाँ पर एक धैर्यशील व्यक्ति जिसका नाम केलब था. He was so faithful to God. वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था. He kept God's promises in front of him. वो परमेश्वर के वायदों को अपने सामने रखता था. Has God promised you something when you were young? When now has God promised you something? क्या परमेश्वर ने आपको किसी विषय पे कोई वायदा दिया है? Have people prophesied over you? क्या लोगों ने आप पर कोई भविष्यवाणियां की है? Will you be a Caleb? तो आप एक केलब के समान बने. You talk that. आप उसी को बात करें. We look at Caleb. He never forgot what God told him. हम केलब की तरफ देखेंगे. उसने वो कभी नहीं भूला कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा था. You look at Numbers 13. गिनती की किताब 13वां अध्याय को देखेंगे. When the spies were sent to Canaan land. जहां पर उन गुप्तचरों को भेजा गया था कनान के देश में. So Caleb was from the tribe of Judah. और केलब जो है वो यूदा गोत्र से था. And the spies went to the valleys and the mountains for 40 days. They spied the land. और गुप्तचर जो थे वो उन पहाड़ों पे जाने लगे, उन सीधे जमीनों पर जाने लगे और वहां पर वो जासूसी करने लगे करीब 40 दिन तक. And Caleb and Joshua saw the pomegranates and the grapes and the figs and the land flowing with milk and honey. And in their heart they said, wow, this is the land God gave us. और जब केलब और यहोशू ने वहां पर वो सारी जमीन को देखी, वहां के फल देखे, वहां के सारी चीजों को देखने लगे, वहां देखने लगे कि कैसे दूध और मधु वहां पर बह रहे हैं. And last Sunday, you remember, Pastor shared with us of when the 12 spies came back, the 10 spies were so depressed and they told everyone so many things. और पिछले सप्ताह पासवान बता रहे थे किस प्रकार जब 12 में से 10 आए तो वो इतने सारी बातों को वो विवरण कर रहे थे कि वहां पे कितने बड़े लोग हैं. In Numbers 13 and 31 we saw, they said this, and I will read it. And the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, and we were like grasshoppers. और गिनती के 13वां अध्याय 31, 32 और 33 वचन को लिखा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे वो उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि हम में से वे बलवान है. और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश के जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसके भेद लेने को हम गए थे वो ऐसा है कि जो अपने निवासियों को निगल जाता है. और जितने पुरुष हमने उसमें से देखा वे सब बड़े बड़े डील डोल के थे. We were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डों के समान दिखाई पड़े थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते थे. It's as if that these 10 people had interviewed the giants and asked them, how do you look at us? और मान लो जैसे कि ये 10 लोगों ने वो जो वहां पर बड़े दानव थे उनका कोई इंटरव्यू लिया था. No, they were spies. Nobody even knew they were there in the land. और कोई नहीं जानता था कि वो उस देश में आए थे, ये तो गुप्तचर थे. They spoke out of their imagination. उन्होंने अपनी कल्पनाओं से सारी बातें कही थी. And then all the people wept the whole night. और वो सारे लोग जिन्होंने उनकी बात सुनी वो पूरी रात रोए. And Caleb stood up. लेकिन केलब वहां से बाहर खड़ा रहा. See chapter 14 verse 6. 14वें अध्याय का 6वां वचन देखिए. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes, and they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, look at the action of Caleb. Why did he tear his clothes?
to get the attention of the people. केलब और यहोशू ने ये बात सुनकर अपने कपड़ों को फाड़ दिया, और ये उन्होंने क्यों किया? ताकि वो सारे लोगों का वो ध्यान बटा सके अपनी तरफ। Because if someone tears the clothes, you look at that person. क्योंकि अगर कोई अपने वस्त्र को फाड़ने लगता है तो आप उनकी तरफ देखते हो। So Caleb was so upset, and what did he say? What did Joshua and he say? He said, "The land we passed through to spy out is an exceedingly good land." और केलब और यहोशू वहां बहुत गुस्से में आए और वो कहने लगे कि जिस जगह पर आपने हमें गुप्तचर बनकर भेजा गया था, जिसके भेज जाने को भेजा था, वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा जमीन है। Say with me, Mumbai is a good land. आप मेरे साथ कहें, मुंबई बहुत अच्छा जमीन है। My field is a good land. मेरा खेत एक अज्जा जमीन है। Yeah. Then we will see what Caleb said. और देखो फिर केलब ने क्या If कहा? the Lord delights in us, then He will bring us into this land. और फिर केलब कहता है कि अगर परमेश्वर हमसे खुश है तो हम इस भूमि पर हम राज्य करेंगे। He will give it to us. और वो हमें दे देगा। A land which flows with milk and honey. ऐसी एक जमीन जो दाखरस और मधु से बह रही है। Do not rebel against the Lord. तुम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं आना। How were the people rebelling? और लोग परमेश्वर के विरुद्ध कैसे आ रहे थे? They were not talking what God had told them so many years ago. वो ये बात नहीं कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्होंने इतने सारे साल उनसे कहे थे। They were talking their own language. वो अपनी ही भाषा बात कर रहे थे। You know, we can rebel against God by talking our own language. क्या आप जानते हो कि हम परमेश्वर के विरुद्ध जा सकते हैं जब हम अपनी बातें करते रहते हैं? If God has promised you something, then you talk that promise. अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज के विषय में वायदा किया है तो आप वही बातें आप भी करते रहे। If God took you to a good land, you talk how you will take it. अगर परमेश्वर आपको अच्छी जमीन पर लेकर जाता है तो आप यही बातें करेंगे कैसे आप उस पर राज्य कर। Now see the 2-3 things Caleb says. केलब ने जो 2-3 बातें कही उसको देखे। Do not rebel against the Lord. तुम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना। Do not fear the people of the land. उस जमीन के लोगों से तुम भयभीत नहीं होना। For they are our bread. क्योंकि वो हमारी रोटी के समान है। Someone told you, right? Mumbai is given to us on a platter. और ऐसे हम हमेशा कहते हैं कि मुंबई शहर को एक थाली पर परोस के हमें दे दिया है। It is your bread. ये आपकी रोटी है। Caleb understood it. केलब ये जान गया था। The promised land is given to him on a platter. और जो वायदा किया हुआ जमीन है वो केलब को आपको थाली पे परोस के दे He दिया। tells the people, it is our bread. और ये लोग जो है ये हमारी रोटी के समान है। He has been eating manna for so long. और वो मन्ना को इतने समय से खा रहे थे। But when he looks at the promised land and he remembers the promise, he said, it is my bread. लेकिन वो जब वायदा किया हुआ जमीन को देखते हैं वो याद करता है कि ये जमीन मेरे लिए एक रोटी के समान है। Caleb understood. केलब जान गया था। When God said he will give the land, जब परमेश्वर ने कहा कि ये जमीन को मैं दे दूंगा, it was God's promise. ये परमेश्वर का वायदा था। So when your father has promised you, you don't have to do anything, you just have to take it. अगर आपके पिता ने आपसे वायदा किया है तो आपको और अन्य कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसे ले लेना है। Caleb has said the word Lord 3 times in this small 2 verses. इन 2 वचनों में कालेब ने करीब 3 बार परमेश्वर प्रभु ऐसे नाम वचन लिखा है। The 10 spies never even mentioned the word Lord. लेकिन वो जो 10 गुप्तचर थे उन्होंने कभी भी ये नाम लिया भी नहीं परमेश्वर का। They just said, we are grasshoppers, they are giants, they. और वो केवल यही कहते रहे कि हम तो डिट्टो के समान है और वो बड़े दानव के समान है, हम वो। Let us encourage ourselves that in the course of every day we will mention the Lord. और हम अपने आप को प्रोत्साहित करें कि हर दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर का नाम निरंतर लेते रहे। When we go to work, when we are at home, we will involve the Lord in our conversation. जब हम काम के जगह पर जाते हैं, जब हम कहीं पर भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर का नाम अपने बातों में रखें। Otherwise, we will end up like the spies. We and they. We are grasshoppers, they are giants. We will lose. और वरना हम इन 10 गुप्तचरों के समान बन जाएंगे। हम कैसे हैं, वो कैसे हैं, हम कैसे हैं, हम टिड्डों के समान हैं, ऐसी बातें हम करते रहेंगे। Can we take a decision today to involve God? क्या ये निर्णय आप अपने बातों में करोगे कि हम अपनी बातों में परमेश्वर का वर्णन करेंगे? In our day-to-day studies, अपने प्रतिदिन के पढ़ाई में, in our day-to-day work, प्रतिदिन के काम पे, when we meet people, जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, we will bring God in the हम picture. परमेश्वर को उस जगह पर लेकर आएंगे।
Because there are giants in the land. क्योंकि इस जमीन पर बड़े दानव हैं And we cannot take it alone. और हम अकेले उन पे जय नहीं प्राप्त कर सकते। But our Father promised the लेकिन land. हमारे पिता ने हमें ये वायदा दिया गया, So we will depend on our तो Father. हम अपने पिता पर निर्भर रहेंगे। Say, I will be a Caleb. आप कहे कि मैं कैलब के समान I will करूंगा, talk about God. मैं परमेश्वर के बारे में बात करूंगा, Even if nobody is listening. चाहे कोई भी मेरी बातों को सुन ना रहा हो। Because people pretend they don't listen. But क्योंकि लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो वो आपकी बातें सुनते ही नहीं, it gets into their heart. लेकिन वो उनके हृदय में प्रवेश जरूर करता है। So Caleb said, the land is our bread. तो कालेब ने कहा कि ये जो जमीन है ये हमारी रोटी है। And he says one more thing. एक और बात कहता है The people's protection has departed from them. कि लोगों का जो सुरक्षा था वो उनसे अलग हो चुका है। Caleb saw the giants. और कालेब ने वो उन दानवों को देखा, He saw the people. वो लोगों को भी देखा, He saw they have no protection. और उसने ये देखा कि उनके पास कोई सुरक्षा ही नहीं है। He saw something more than the physical. और जो प्राकृतिक तौर पर दिख रहा था उससे कुछ अधिक बातें कालेब ने देखा। Caleb had such a relationship with God. कालेब के पास ऐसा एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ। See, only if we have a relationship with Jesus Christ, we will see something beyond the physical. केवल अगर हमारा रिश्ता होगा यीशु मसीह के साथ, तभी हम जो प्राकृतिक है उससे बढ़कर हम कुछ बातें देख We will पाएंगे। see giants. हम इन दानवों को तो That देखेंगे, means we might see difficulties. उसका अर्थ है कि हम ये मुश्किलों को देखेंगे, We might see challenges. हम शायद से चुनौतियों को देखेंगे, But we will see that those giants have no protection. लेकिन हम ये के पास कोई सुरक्षा नहीं है, They will not last. वो वहां टिकेंगे नहीं, The problem will not continue. वो परेशानी वहां आगे बढ़ती नहीं जाएगी, Because I am going to destroy it. क्योंकि मैं उसका नाश करने वाला हूं। He says their protection has departed from और them. कालेब कहता है कि उनकी सुरक्षा उनसे अलग हो चुकी है, And the Lord is with me. और प्रभु हमारे साथ The है। Lord is with us. प्रभु हमारे साथ है। The 10 spies never mentioned the Lord. वो 10 जो गुप्तचर थे उन्होंने कभी वर्णन भी नहीं किया परमेश्वर का। They never mentioned that God is with us. उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि प्रभु हमारे साथ है। They said we will not go. वो कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे, But we are Caleb. लेकिन हम कालेब के समान We हैं। will mention God. हम परमेश्वर का वर्णन करेंगे, Because our enemy has no protection. क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है। And I have the Lord with me. और लेकिन मेरे पास प्रभु Come on, परमेश्वर है। say, I have the Lord with आप me. कहे कि मेरे पास प्रभु है, My enemy has no protection. मेरे दुश्मनों के पास कोई सुरक्षा नहीं है। I will take the promise of my Father. मेरे पिता का जो वायदा है उसे मैं ले लूंगा। So the first thing we saw is Caleb spoke differently. और पहली बात जो हमने देखा वो यह था कि कालेब अलग तरीके से बात करता था। The second thing we see is Caleb remembered God's promises. और दूसरी बात यह है कि कालेब जो था वो परमेश्वर के वायदों को याद करता था। From this point of Numbers 13 and 14, there are 45 years. और गिनती के 13वें और 14वें अध्याय के बीच ये 45 वर्ष है। Caleb, we know, we saw it. He was 40 years old at this time. और उस समय पे वो 40 साल का था कालेब, But at the age of 85, he still remembers. लेकिन 85 साल के वर्ष में भी उसे अब भी याद था। And he remembers the general blessing of inheritance which God promised Israel. और विरासत की जो वो वायदा जो परमेश्वर ने इज़राइल को दिया था वो उसे याद था। And it became his personal blessing. और वो उसका व्यक्तिगत तौर पे वायदा बन गया था। You know, God has promised all believers a blessing. और परमेश्वर ने सारे विश्वासियों को एक वायदा दिया है, But only the Calebs will make it a personal blessing. लेकिन केवल वो कालेब है जो अपने लिए वो व्यक्तिगत आशीष को मानकर स्वीकारेगा। All believers are promised wealth of the wicked. सारे विश्वासी जो है वो दुष्टों की जो संपत्ति है उनके लिए वायदा किया But है, only Caleb took the wealth of the giants. लेकिन केवल केलब ही था जो उन दानवों का सारी संपत्ति को ले लेता। How he did it? कैसे उसने किया? He remembered it. उसने उसे याद He किया, believed it. उस पर विश्वास He किया spoke it. और उसके बारे में बात किया। And after 45 years, he goes to Joshua. और 45 साल के बाद वो यहोशू के पास जाता है He says, remember Joshua? और वो कहता है क्या तुम्हें याद है यहोशू, You and I, we were young. हम दोनों जवान थे, Our babies were small. हमारे बच्चे छोटे थे, Our wives were there. हमारी पत्नियां वहां थी, And God told us He will give us this land. और परमेश्वर ने हमसे कहा कि इस धरती को, इस जमीन को मैं तुम्हें दे दूंगा। Now I want that mountain Hebron. अब वो हेब्रोन नाम का जो पहाड़ है उसे मैं चाहता हूँ। Most difficult place He chose. सबसे मुश्किल स्थान उसने चुना। There were huge giants in Hebron. वो हेब्रोन में बड़े बड़े दानव थे। Who wants to fight the giants? कौन इन बड़े दानवों से लड़ना चाहेगा? Caleb. केलब।
Say, Caleb, आप कहे कैलेब, will you fight the giant? क्या आप इन दानवों से लड़ोगे? I thought I should not fight the giants. I take the easier one. और मुझे ऐसे दानवों से नहीं लड़ना है, कोई आसान रास्ता है तो वो मैं चुन लूंगा। But Caleb had so much faith. लेकिन कालेब में इतना विश्वास था, But it took 45 years. लेकिन 45 साल लग गए। He did not forget. वो भूला नहीं। I want to encourage you, if God has promised you something, God will give you. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि अगर कोई भी वायदा परमेश्वर ने आपको दिया है तो परमेश्वर उसे निश्चित तौर पर देगा। Is it taking time? क्या ये समय ले रहा I है? don't know why there's a delay. और मैं नहीं जानती कि क्यों वहां पर देरी हो रही है। Sometimes the delays are because we are with some people. और कुछ देरी ऐसी हमारे साथ इसी कारण हो रही है क्योंकि हम कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। Caleb was with the Israelites. और कालेब जो है वो इजरायली जन के साथ था। So till that generation passed away, Caleb had to wait. और जब तक वो पीढ़ी वहां से बीत नहीं गई तब तक उसे कालेब को इंतजार करना जरूरी था। 45 years. 45 साल। It's not a small thing. ये छोटा समय नहीं था। What happened in those 45 और उन years? 45 सालों में क्या हुआ? Numbers chapter 16. गिनती का 16वां अध्याय। We won't go through the whole chapter. सारा अध्याय हम नहीं पढ़ेंगे, But there was a rebellion against Moses. लेकिन मूसा के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विरोध शुरू हुआ। One man from the tribe of Levi. और लीवा के गोत्र से एक व्यक्ति, His name was Korah. और कोरा नामक के व्यक्ति था। He met some great grandsons of the tribe of Reuben. और रूबन के कुछ नाती पोतियों को वो मिला, Dathan and Abiram. Dathan and Abiram. नेतन और अभिनाम। They together came against Moses. और वो मूसा के विरुद्ध आने लगे They said, we are also great. और वो कहने लगे हम भी महान And हैं। they rebelled against the और team. उनका विरोध वो करने लगे। And Caleb saw और it. कैलेब ने देखा। How Caleb must have felt. कैलेब को कैसे लगा होगा? Hey, we have to go and take the promised land and they are fighting amongst themselves. अरे हमको वो वायदा किया वो जमीन को लेना है, उस पर विजय होना है और तुम आपस में ही लड़ रहे हो। All these families of Korah, Abiram, Dathan all died. और कोरा, अबिराम, नेतन, इनके सारे परिवार वहां मर गए। How sad it ये was. कितना दुखी बात है। Then came Numbers 20. और फिर गिनती का 20वां अध्याय। People grumbled. और लोग कुड़कुड़ाने लगे। And the snakes came in the desert. और वो उस रेगिस्तान में सांप आने लगे। Caleb also saw it. कैलेब ने भी देखा। His daughter Aksa also saw it. उसकी बेटी अक्सा ने भी But the देखा। snakes never bit them. लेकिन उन सांपों ने उन्हें कभी भी डंक नहीं मारा। Because Caleb spoke promised land. क्योंकि कालेब जो है वो वायदा किया वो जमीन के बारे में Say बात with करते me, रहा। promised land. आप मेरे साथ कहे वो वायदा किया वो जमीन, Inheritance. वो विरासत। When the people were grumbling and the snakes were biting, Caleb was speaking promised land. जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, सांप उन्हें डस रहे थे, तभी वो कालेब कह रहा था कि वो वायदा किया वो जमीन। Thousands of people died. हजारों लोग मर गए, Caleb focused on the promised land. लेकिन कालेब का सारा ध्यान उस वायदा किया हुआ जमीन On पर his था inheritance. और उसकी विरासत पर था On his bodybuilding. और उसके देह को और बलवंत बनाने में था On his mind renewing. और उसके मन में विश्वास करने के लिए था On making his spirit strong. और उसके आत्मा को और बल देने में था। Come on, wake up your neighbor. अपने पड़ोसी को उठाए, उठाओ, बोलो सोए मत. उनको सोए नहीं, Be a Caleb. आप कालेब के समान बने। I know AC makes us a little sleepy, I understand. और एसी में ठंडक में हम थोड़ा हमें नींद आने लगता है, मैं समझती हूँ। So many people slept in the wilderness. और उन जंगली स्थानों में कई सारे लोग सो Do you गए know in history it says 60 lakh people died. और in 40 इतिहास years. गवाह है कि 60 लाख लोग वहां पर मर गए इन 40 सालों में। Oh, the whole generation. सारी पीढ़ी। Every time Caleb attended a funeral, हर बार जब कालेब एक फ्यूनरल में आता था, he reminded himself, वो अपने आप को याद दिलाता I will था, not die. मैं नहीं मरूंगा, I will take my inheritance. मैं अपनी विरासत को ले लूंगा। Say with me, I will not die. मेरे साथ कहे कि मैं I नहीं will मरूंगा, receive my inheritance. जो मेरी विरासत है उसे मैं पा Because लूंगा, I am from the tribe of Judah. क्योंकि मैं जूदा के गोत्र से हूँ And Jesus is from the tribe of और Judah. यीशु भी उसी गोत्र से है He is the lion और वो शेर of है, the tribe of Judah. वो सिंह है जो यूदा का, I belong to him. Jesus is our Caleb. और यीशु हमारा कालेब है He received the inheritance और उसने उस विरासत को पा लिया and then he gave it to us. और फिर हमें दे दिया। See this man. Look at Numbers 23, Numbers 24. गिनती के 23वां अध्याय 24वें अध्याय को देखें। We'll see these beautiful verses. Numbers 23 verse 22. गिनती 23वां अध्याय उसका 22वां वचन। This is Balaam's prophecy, but I want you to look at some verses. ये बालाम की भविष्यवाणी है, लेकिन कुछ वचनों को हम देखेंगे। And when Balaam was prophesying, Caleb was also in that big
group of Israel. जब बालाम भविष्यवाणी दे रहा था तो वो बड़े से झुंड में इजराइल का वहां पे कैलेब भी मौजूद था। Balaam is talking about Israel. और बालाम इजराइल के बारे में बता रहा है। God brings them out of Egypt. और परमेश्वर मिस्र से उन्हें वापस लेकर आता है। He has strength like a wild ox. और एक बिनौले सांड के समान उसकी ताकत है। Verse 24. और 24वां वचन, Look, a people rises like a lioness यहाँ पे एक बड़ा झुंड उठ रहा है, एक बड़ी सिंहनी के नाई, and lifts itself like a lion. और अपने सिर को खड़ा कर रहा है एक सिंह के समान। Again, chapter 24, verse 8. 24वां वचन 8वां वचन देखेंगे। God brings him out of Egypt. He has strength like a wild ox. और परमेश्वर उनको मिस्र से बाहर निकाल रहा है, एक बिनौले सांड के समान उनमें बल है। Caleb had the strength of a lion. और कालेब में एक सिंह के समान उसका ताकत था। You don't look like lions, but you have strength like a lion. आप शायद एक सिंह के समान दिखते तो नहीं, लेकिन आप ये बल एक सिंह के समान है। Say, I have strength like a lion. आप कहे मुझ में ताकत एक सिंह के समान है। I have strength like a wild ox. एक बनौले सांड के समान मेरे में ताकत है। You might not feel strong, but you are very strong. आप शायद ऐसा बलशाली महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप बहुत ही बल रखते हो। Men and women who believe in Jesus Christ are very strong. और आदमी और पुरुष और स्त्री जो यीशु पर विश्वास बलशाली होते We हैं। look very ordinary in our office. हमारे दफ्तर में तो हम साधारण से दिख रहे हैं। We go in, we go out. हम अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। In your college, you go in, you go out. You just have a roll number. और कॉलेज में भी आपका केवल एक रोल नंबर है, आप अंदर आते हो, बाहर जाते हो। But heaven knows that you are strong. लेकिन स्वर्ग जानता है कि आप बलशाली हो, Because heaven backs you. क्योंकि स्वर्ग आपके पीछे खड़ा है। The enemy knows you are strong. और शायद आपका विरोधी भी जानता है कि आप बलशाली हो। That's why he tries to make you scared. और इसीलिए वो आपको डराने की कोशिश करता So if है। your mind is scared, you will not move forward. तो अगर आपका मन डरा हुआ है तो आगे ही नहीं बढ़ोगे। So please remind yourself तो अपने आप को याद दिलाए that you are like Caleb. कि आप कालेब के समान हो। Let's look further. आगे हम देखेंगे। 45 years have gone. 45 साल बीत चुके हैं। Aaron died. Aaron, high एरन priest. मर चुका है, Moses died. मूसा भी मर चुका है, But Caleb didn't die. लेकिन कालेब नहीं मरा। The Jericho walls fell down. यरीको के दीवार गिर गए हैं। Joshua is moving forward with the whole army. यहोशू पूरी सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। In the middle of 45 years, there was one very big giant who came in the middle. और इस 45 साल के बीचों बीच एक बड़ा सा दाना उनके सामने आ गया था। He was the king of Bashan. और बाशान का राजा था। He's a very small name, but he's a very tall man. और बहुत ही छोटा नाम है, लेकिन वो बड़े लंबे कद का था। Have you heard of Og, king of Bashan? क्या आपने औग के बारे में सुना है? राजा था बाशान का। We used to learn this one psalm by heart, and then there was that word Og, and I found it such an odd name. और ये Og, king of Bashan. You heard him? क्या आपने ऐसा अजीब सा नाम सुना है, बाशान जो? You never heard of Og? अरे Og was a very huge giant. ये औग जो था बड़ा सा एक दानव था। Forget the giant in the promised land. This Og, king of Bashan, came against Israel. और वहां जहां पे वायदा किया हुआ जमीन था उसको तो अलग ही रखिए, लेकिन यहाँ पर ये राजा था बाशान का, औग नामक, वही आगे I don't know if those 10 spies even fought with him, but I know Caleb went. और मैं नहीं जानती कि वो 10 जो गुप्तचर थे वो उनसे लड़े कि नहीं, लेकिन कालेब जरूर गया था। And Og was killed. और वो औग की हत्या की गई And थी। Israel passed forward. और इजराइल का जन आगे बढ़ गया। It was like a test. वो ये एक टेस्ट के Like समान a था। trial before the actual fellows. और जो हकीकत में जो लोग आने वाले थे उनसे पहले एक टेस्ट हो रहा था। God is making your muscle strong. परमेश्वर आपके मांसपेशियों को बलवंत बना रहा है। Every faith step is actually a faith training for your inheritance. हर एक विश्वास का कदम आपकी जो विरासत है उसके प्रति आपके लिए एक तैयारी है। Every day is a faith step. हर एक दिन एक विश्वास का कदम है। You overcome a challenge. आप एक चुनौती पर विजयी होते हो। You overcome a pain. और एक दर्द पर विजयी होते हो। You overcome a problem. एक परेशानी पर विजयी होते You हो। overcome a giant. एक बड़े से दानव पर विजयी It's होते to हो, overcome the bigger ones. ताकि वो बड़े लोगों पर आप विजयी हो सके। Be patient. आप धीरज रखें। You are running the race. आप इस दौड़ आप लगा रहे हो। Let's do actions. Come on, we are running the race. हम ये एक्शन करें कि हम एक दौड़ रहे हैं। With patience. और धीरज
धीरज के साथ। I know these athletes, you might wonder, what is running with patience? Running is running. और जो दौड़ लगाते हैं आप उनको पूछोगे तो वो बोलेंगे इसमें धीरज के साथ क्या दौड़ना है, दौड़ने का अर्थ तो जोर से दौड़ना है। But the race of life needs patience. लेकिन जिंदगी का जो दौड़ है उसमें धीरज की And जरूरत है। Caleb is running, but with patience. लेकिन कालेब यहाँ पर दौड़ रहा है लेकिन धीरज के साथ। He is imagining, "Oh, I'm going to defeat those giants." वो यही कल्पना कर रहा है कि उन दानवों को मैं हराने वाला हूँ। Caleb is getting his practice. और केलेब अपनी तैयारी कर रहा है। And we know how he took over Hebron. हम जानते हैं कि वो हेब्रोन पर कैसे विजयी हुआ। Let's look at Joshua. यहोशू को देखे। Joshua chapter 15 verse 13. Now to Caleb the son of Jephunneh, he gave a share among the children of Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, namely Kiriath Arba, which is Hebron. Verse 14. Caleb drove out the three sons of Anak. Now this is a huge giant khandan. The giants are sitting on the mountain. And what is Caleb doing? He is remembering, मैंने Og को भगाया ना, king of giants, I will भगाओ these guys also. और ये पूरे दानवों का बड़ा एक परिवार था, लेकिन कैलेब अपने आप को याद दिला रहा था कि कैसे मैंने ओग नामक बड़े से दानव को हराया, वैसे ही मैं इनको भी And भगाऊंगा। alone he did not do. He had his family, he had the tribe of Judah, he had Joshua. Everybody is here together. और वो अकेला नहीं था, उसका सारा परिवार साथ था, युदा का गोत्र सारा साथ था, वो यहोशू साथ थे। Three giants, Shishai, Ahiman, Talmai. I don't know them personally, but they are giants. और ऐसे ये तीन बड़े दानव थे, उनको व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानती लेकिन बड़े दानव थे। And he took over Hebron. और हेब्रोन पर वो विजयी हुआ। Hebron was the place where Abraham was buried. हेब्रोन वो जगह था जहां पे इब्राहिम को दफनाया गया था। Abraham and Sarah were buried in Hebron in the cave of Machpelah, which Abraham bought. और जो वहां पर एक गुफा था मकफेरा नाम का, वहां पर अब्राम और सारा के दफनाया गया था। Isaac and Rebekah's grave is there. इजाक और रेबेका के को भी वहीं पे दफनाया गया था। Jacob and Leah's grave is there. जेकब और लेया के भी वहीं पे दफनाया गया था। Caleb said, "I want inheritance. केलेब ने कहा कि मुझे इस विरासत की I जरूरत है। want the land which my forefathers are." मेरे जो पूर्वजों ने मुझे दिया है वही जमीन मुझे चाहिए। Caleb knew history. और कालेब जो था वो इतिहास जानता था। I want to encourage you. Many of us may have lost some property, but God will give it back to us. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप में से अगर किसी ने भी अपनी संपत्ति खोई है तो परमेश्वर उसे आपको वापस दिलाएगा। Land is a spiritual thing. और जो जमीन है ये एक आत्मिक तत्व है। Land belongs to God. He will give it to you. ये जमीन परमेश्वर का है, वो आपको दिलाकर रहेगा। Caleb took over Hebron. केलेब वहां पर हेब्रोन पर वो विजयी हुआ। One more thing is Hebron became a city of refuge. और एक और बात, हेब्रोन जो है वो सुरक्षा का एक शहर बना। Hebron was mountain area. और हेब्रोन जो था वो पहाड़ी इलाका था। He took the land of the giants. और वहां पर जो दानवों का जगह था उसने He उसके took पर विजयी हुआ। the land of history. His fathers were there. और जो उसके पिताओं का इतिहास का जमीन था वो उसने ले लिया। And Caleb doesn't sit down. और केलेब वहां चुप नहीं बैठता, He looks at his beautiful daughter Aksa. वो अपने सुंदर बेटी अक्सा की तरफ देखता है। Caleb is a lion. और केलेब जो है वो एक सिंह है, So bold. वो बहुत ही धैर्यशाली है, He is so brave. वो हिम्मत रखता He है, loves God so much. वो इतना अधिक परमेश्वर से प्रेम रखता Because है। the word Hebron means association. क्योंकि हेब्रोन जो नाम अर्थ है वो उसका नाम है कि संगति। Come on, put your hands together. Association. और आप हाथ साथ में जोड़े, एक ऐसी So it संगति। was God and Caleb together. और परमेश्वर और कालेब साथ में थे। What a relationship with कैसा एक God. अद्भुत रिश्ता था It परमेश्वर was के not साथ। a war of Caleb और कालेब का ये व्यक्तिगत कोई युद्ध नहीं or था, just a war of Israel. या इजराइल का कोई व्यक्तिगत It युद्ध was नहीं a था, war of God. वो परमेश्वर का युद्ध It was for था, God's honor, वो परमेश्वर के आदर का था। and Caleb wanted it. और कालेब को वो चाहिए था। But I want you to look at this. Caleb doesn't leave the next generation. और इस बात को आप ध्यान से देखें, कालेब जो है wants- अपनी अगली पीढ़ी को नहीं छोड़ता। He wants the same kind of husband for his daughter. वो ऐसा ही एक पति अपने बेटी के लिए भी चाहता था। He doesn't want some lallu who is scared of giants. और कोई ऐसे डरपोक नहीं चाहता था जो ऐसे दानवों से डरता हो। Which father wants their daughter to marry a darpok? कौन सा पिता ऐसे चाहेगा कि उनकी बेटी से कोई डरपोक शादी कर ले? If Caleb dies, then that husband of Aksa will make her
just sit in the house scared, or hey, don't go out, there is a lion outside. Caleb doesn't want like that. जब भी कालेब की मृत्यु होती तो उसका उनकी बेटी अक्सा के पति उससे कहता कि बाहर शेर है, तुम डर कर अंदर ही बैठना। Fathers of daughters, how much your heart wants the right man for your daughter. और बेटियों के पिता कितना अधिक आपका हृदय चाहता है कि आपके बेटियों के साथ सही व्यक्ति के विवाह हो। So Caleb does a chunauti, a challenge. और कालेब जो है वहां पर एक चुनौती रखता है। There is a place called Debir, D-E-B-I-R. डेबीर नामक एक जगह था। There is giant there also. वहां पर भी बड़े दानव थे। And Caleb says, whoever gets Debir and throws away those giants, I will give Aksa as wife. और केलेब कहता है कि जो भी डेबीर पर विजय होता है, उन दानवों को हरा देता है, उन्हीं के साथ मैं अपनी बेटी का Now only somebody who love Aksa will go to that Debir and fight the giants. और केवल वही व्यक्ति जो अक्सा से प्रेम करता है वही ये इतना बड़ा एक चुनौती लेगा। So there is a young man called Othniel. ओथनिएल नाम का एक जवान व्यक्ति वहां आता है। Othniel is a handsome young man. And meaning of Othniel means strength like a lion. और ओथनिएल जो नाम है उसका अर्थ है कि एक सिंह के समान ताकत। And it also means strength of God. और उसका अर्थ ये भी है कि परमेश्वर की ताकत। So Othniel says, I'll go and fight Debir. तो ओथनिएल कहता है कि मैं जाऊंगा और डेबीर में लड़ूंगा। And he fights the giants. और उन दानवों के साथ वो लड़ाई करता है। And he gets married to Aksa. और विजयी होकर वो फिर अक्सा से विवाह करता है। Oh, what a beautiful love story. कितना सुंदर प्रेम कथा है। No, but Othniel is very bold. लेकिन ओथनिएल जो था बहुत धैर्यशाली था। And Aksa is also very bold. और अक्सा भी बहुत धैर्यशाली थी। And when Aksa is married to this handsome Othniel, जब इनकी विवाह होती है, she says, my sweet husband, you fought for me. और मेरे प्रिय पति, क्या तुमने मेरे लिए ये युद्ध लड़ा? You got this amazing place called Debir डेबीर नामक ये सुंदर जगह तुमने मेरे लिए as जीता, our inheritance. अपनी विरासत के तौर पर जीता। Say with me, inheritance. मेरे साथ कहे विरासत। There's some inheritance you have to fight for. कुछ विरासत ऐसी है जिसके लिए हमें लड़ना You have होगा। to fight for in prayer. आपको प्रार्थना में ये लड़ाई करनी You have होगी। to labor for it. आपको उसके लिए बहुत परिश्रम करना You होगा। have to love for it. आपको प्रेम रखना You होगा। have to sacrifice energy, time, money for that inheritance. और आपको अपना समय, आपकी सारी ताकत और पैसा आपको उसके पीछे खर्च करना होगा। Will you be an Othniel? क्या आप एक ओथनिएल Oh, बनोगे you will be a lazy fellow. या आलसी व्यक्ति बनोगे? People will take that mountains and you will sit eating grapes. लोग उन पहाड़ों को जीतते जाएंगे और आप अंगूर खाते रहना। Will you fight for it? क्या आप उसके लिए लड़ोगे? Say, I'll fight for it. क्या आप कहो कि मैं लड़ूंगा उसके लिए? I will stay awake for it. मैं उसके लिए जागता रहूंगा। I will pray for it. मैं प्रार्थना करता रहूंगा। It may be health, it may be wealth, it may be a job, it may be a marriage, it may be something. चाहे ये आपकी सेहत के विषय हो, आर्थिक स्थिति के विषय हो, आपके विवाह के विषय हो, नौकरी के विषय हो, किसी भी विषय में क्यों ना हो। But that's not enough. Aksa tells her husband, लेकिन इतना काफी नहीं है। अक्सा अपने पति से कहती है, Othniel, go to daddy. ओथनिएल तुम पिताजी के पास जाओ Ask for a field. और एक खेत के लिए मांगो। Son-in-laws, when they ask, parents give, right? और जहाँ पे वो जमाई मांगता है तो वो पिता मांग दे देते हैं। Son-in-laws, daughter-in-laws, son-in-laws, go and ask your father-in-law. Make the best of it. Love him. Yeah, go and ask. और अपने ससुर के साथ अच्छा रिश्ता रखिए, So उनसे प्रेम करें। Othniel went and asked. और ओथनिएल जाता है और मांगता है। He asked, Daddy Caleb, और वो कहता है कि पिताजी का I want this field. और ये जो खेत है ये मुझे चाहिए। Caleb said, of course. केलेब कहता है जरूर ले लो, I kept everything for you only, ये सब तुम्हारे लिए Othniel. रखा है, ले लो। He's married his daughter, na? उसने अपनी बेटी से शादी किया। Some inheritances are asked. और कुछ विरासत ऐसी होती है जिसको आप मांग सकते हो। See, Othniel is not proud. और ओथनिएल जो है वो घमंडी नहीं तो है। मैं क्यों ससुरा से मांगू? तू मांग, मैं क्यों मांगू? See, son-in-law asking and daughter asking is different, right? और जब भी जमाई मांगता है और जब वो बेटी मांगती है तो अलग ही होगा। No, Othniel went and asked daddy. ओथनिएल लेकिन जाता है और मांगता है He got the field. और वो जो खेत है वो पा लेता है। Come on, some inheritances are asked. Say, I will ask. और कुछ विरासत जो है वो आप मांग सकते हो। I आप will कहे be मांग सकता हूँ humble enough to ask. और मैं इतना नम्र बनूंगा कि मैं मांगूंगा। Othniel never fought for the field. ओथनिएल ने उस खेत के लिए लड़ाई नहीं की, He just asked for it. उसने केवल मांग लिया। Will you ask for it, or you आप be too उसके लिए- proud of yourself? क्या आप मांगोगे या आप Yeah? बहुत घमंडी How रहोगे? many will ask? कितने लोग मांगेंगे?
And anyway, aksa means ask also. Aksa. Some people don't say ask, they say aks. So you remember that. Okay? Okay, and it's not aksa, it's ask in English. But aksa, ask, told her husband, ask. Okay, don't worry. Third. तीसरी बात, Now, aksa gets onto a donkey. They're not stopping. Say, non-stopping. Say unstoppable faith. आप कहे कि ऐसा विश्वास जिसे रोक नहीं सकते, Unstoppable faith. जैसा विश्वास जैसे कोई रोक नहीं You सकते। see this couple? इस जोड़े को देखिए आप, They're not ordinary. वो साधारण नहीं है। He has fought a giant for his wife. अपने पत्नी के लिए बड़े दानवों से उसने लड़ाई की It was है। not an arranged marriage. और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है। He has risked. It is either he will die or the giant will die. या तो वो मरेगा या तो वो दानवों को मार If he कर आएगा। died, I don't know where Aksa would have gone. अगर वो मर जाता तो फिर अक्सा कहाँ जाती नहीं जानता। But God gave the land. लेकिन परमेश्वर ने उस जमीन को दे So दिया। God will throw out the giants. परमेश्वर दानवों को बाहर फेंकेगा। I'll tell you, whoever confronted giants knew it was not their own strength. और जिन्होंने भी उन दानवों से लड़ाई की वो जानते थे कि ये अपनी ताकत से नहीं They हुई। just knew God gave them that. वो inheritance. जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। Then Aksa gets onto a donkey and she goes to daddy. और फिर अक्सा जो है वो एक गधे पे बैठती है और अपने पिताजी के पास And जाती she है। says, Daddy, blessing. और फिर वो पिताजी से कहती है कि पिता आप मुझे आशीष दे। Put your hand on your head, say blessing. अपना हाथों को सिरों पर रखे और Say, कहे Daddy, आशीष। blessing. पिता आशीष, Father God, blessing. पिता परमेश्वर आशीष। I love you. हम हमसे प्रेम करते हैं। Put your hands down. This is totally not emotional blackmail. It is like Aksa putting her arms around her daddy and said, Daddy, I want blessing. I got married. I want the blessing. और ये कोई भावनात्मक तौर पे कोई अत्याचार नहीं है, बल्कि अक्सा अपने पिता के सामने खड़े होकर कहती है बाहें फैलाकर, पिता आशीष दो मुझे। How many times you have cried out to daddy, Daddy, blessing. I want you to bless me. You have to do that. और कितनी बार आपने पिता परमेश्वर के सामने बाहों को फैलाकर रोए हो कि पिता मुझे आशीष कर, आपको ये करना है। Or be too proud to ask for blessings? क्या आप बहुत घमंडी हो कि आप मांगते Say, I will ask for blessings. और Put आप your hand कहें up. कि मैं पिता से मांगूंगा आशीष के लिए। Yeah, active relationship with daddy. Every पिता day परमेश्वर go. के साथ एक सक्रिय रिश्ता आपको रखना है। You can't go to your daddy once on Sunday only and ask for और blessing. केवल कोई रविवार के सुबह आप पिता परमेश्वर के सामने पहुंचते हो, ऐसा एक रिश्ता नहीं होना चाहिए। Keep the relationship with Father Daddy, Father God. और पिता परमेश्वर के साथ ये रिश्ते को बनाए रखे। I love this father-daughter relationship. और ये पिता और बेटी का जो रिश्ता है ये मुझे बहुत पसंद है। It's full of gifts and blessings and gifts and blessings. और ये भेंट और आशीष से भरे हुए हैं। We have a rich father. हमारा बहुत ही धनी परमेश्वर And है। Caleb gives her blessing. और केलेब उन्हें आशीष देता है। He gives Aksa the upper springs. और ऊपर के जो झरने हैं वो अक्सा को दे देता है। And you know, in the next verse it says, and then he gave her the lower springs. और फिर अगला ही वचन में लिखा है कि निचले स्थान पर जो झरने थे उसे भी वो दे देता The है। fourth inheritance, you never asked for it. और चौथा जो विरासत है उसके लिए आप कभी मांगते हैं, You never fought for it. आपने कभी उसके लिए लड़ा भी नहीं, You never demanded the blessing. आपने कभी हक से मांगा भी नहीं। Your father will give you not only life, but he will give you abundant life. और परमेश्वर केवल पिता आपको केवल जीवन नहीं देता है, बहुत आयत में जीवन देता More है। than you ask. आप जितना मांगते हो उससे बहुत अधिक, More than you think. जितना आप सोचते हो उससे अधिक। That's our relationship with Jesus. यही यीशु के साथ जो रिश्ता है, He won our inheritance for us. और उसने हमारी विरासत को जीत लिया And he है। says, now run the race. अब वो कहता है कि इस दौड़ को तुम दौड़ो, Not only fight, but ask. केवल लड़ो ही नहीं बल्कि मांगो, Get the blessings. आशीष को ले लो। To him who has will be given more. और जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा। Why is it like that? ऐसा क्यों है? I always thought how unfair that verse और मुझे is. लगता था कि ये बात ठीक नहीं है। It says, to him who doesn't have, even that which he has will be taken away और ऐसे from him. लिखा है कि जिसके पास नहीं है जो कुछ उसके हाथों में है वो भी छीन लिया जाएगा। Because the one who has nothing, he never asked for anything. क्योंकि जिसके पास कुछ है नहीं उसने कभी मांगा ही नहीं, Never fought for anything. कभी लड़ा भी नहीं, Never wanted anything. कभी उसने चाहा भी नहीं, Never believed for कभी anything. विश्वास भी नहीं किया And किसी lost चीज के लिए, everything. और सारी बातों को खो But दिया। the one who fought for the inheritance, the blessing of God, he received it. और लेकिन जिसने परमेश्वर की उस आशीष के लिए लड़ाई की उसने उसे प्राप्त किया।
So Othniel is a great son-in-law to Caleb. और ओथनिएल जो था वो कालेब के लिए बहुत ही अच्छा एक जमाई था। Caleb never became the judge of Israel. केलब कभी भी इज़राइल का एक न्यायाधीश नहीं बना। But the first judge of Israel was his son-in-law. लेकिन इज़राइल का सबसे पहला न्यायाधीश जो था वो इसका जमाई था। God sees your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। Elderly parents are sitting here. और बैठे हैं। God sees your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। God honors you. परमेश्वर आपका आदर करता है। He will bless your children. वो आपके बच्चों को Your आशीष देगा। sons and daughters will become mighty on the earth. आपके बेटे बेटियां यहाँ इस पृथ्वी पर सामर्थी बनेंगे। Othniel became the first judge of Israel. ओथनिएल जो है वो इज़राइल का पहला न्यायाधीश बना। He defeated the king of Mesopotamia. मेसोपोटामिया के राजा को उसने हरा दिया He defeated a giant. और बड़े दानव को हरा दिया। 40 years he was judge of Israel. 40 साल वो इज़राइल का न्यायाधीश बना। And the Bible says that Israel had a beautiful relationship with God when Othniel was the judge. और बाइबल ये कहता है कि इज़राइल का बहुत ही सुंदर एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ जब ओथनिएल वहां पर Let न्यायाधीश। us go forward many years. और आगे बढ़ेंगे कई साल बाद। Othniel and Caleb were role models. और ओथनिएल और केलब जो थे वो बहुत ही अच्छे दृष्टांत थे। They were giant fighters. वो दानव को हराने वाले योद्धा थे। They were giant killers. वो दानव को हराने वाले योद्धा थे। Young boy David was in the fields with his sheep. और जवान लड़का दाऊद अपने खेत में था। Also from the tribe of Judah. वो भी यूदा के गोत्र से था। He must have remembered Caleb and Othniel. और वो याद कर रहा था शायद केलब और ओथनिएल को। Wow, they killed giants. और ऐसे बड़े दानवों को उसने हरा दिया। 3, 4 giants. 3, 4 ऐसे दानवों को हरा And दिया। then that history, that Og fellow, Og of king of Bashan, 13 feet bed he had. और 13 feet. 13 फुट का तो बिस्तर था उस बाशान के राजा का। So David must have thought, where are these fellows, these giants? और दाऊद सोचता था कि ये दानव सब कहाँ पे है। How nice if I can get my hands on one of them. और कितना अच्छा होगा अगर मेरा हाथ भी उन पे किसी पे पड़ जाए। Who are our role models? हमारे लिए अच्छे दृष्टांत कौन है? All the ministers of faith. Let us look at them. और जो विश्वास के योद्धा है हम उनकी तरफ देखें। Let us see their YouTube videos. और उनके YouTube में वीडियोस देखें। And have that kind of faith. और उस प्रकार विश्वास हम भी रखें। If they purchased a mall, I will also purchase अगर one उन्होंने mall एक at मॉल least. को खरीद लिया है तो हम भी मॉल को खरीद लेंगे। If they started an airlines or a bank, let me at least have one in my lifetime. अगर कोई एयरलाइंस उन्हें शुरुआत कर लिया है या कोई बैंक की शुरुआत किया तो अपने पूरे आयु में हम एक तो If शुरुआत they करें। got schools, I will also get schools. अगर उन्होंने कई सारे स्कूल्स को हासिल किए तो हम भी उसे हासिल करेंगे। So when David saw Goliath, तो जब दाऊद ने गोलियात को देखा he remembered Caleb. उसने कालेब को याद He किया, remembered Othniel. ओथनिएल को याद किया He remembered the 10 spies. और वो 10 जो गुप्तचर थे उन्हें याद किया। And he knew that God only gave Goliath in his hands. और वो जानता था कि परमेश्वर ने ही गोलियात को उसके हाथों में दे दिया है। Beloved, there is a race of giants. और ये दानव के बड़े सी एक गोत्र है। They are always trying to oppress. वो हमेशा ऐसे लोगों को दुष्ट दबाव में डालने की कोशिश Then करते हैं। there is a race of grasshoppers. और ऐसी भी एक झुंड है जो टिड्डियों की है। You see in this race of grasshoppers? और आपने ऐसे टिड्डियों का ये झुंड को देखा They है? will always cluster together and talk about the giants. वो हमेशा साथ मिल जाते हैं और भी बड़े दानवों के बारे में बात करते रहते हैं। Let us not be on the race of the grasshoppers. हम उन टिड्डियों के उन झुंड में ना बैठे। All look same, green color. और सारे एक समान दिखते हैं, हरे दिखते हैं, No difference in each of them. कोई उनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। They will jump from one place to the other place. एक जगह से दूसरी जगह पर They कूदते will हैं। only eat the green color. वो जो हरा चीज है उसी को खाते हैं। They don't have a vision. कोई दर्शन नहीं है। But then there's a race of faith. लेकिन विश्वास का एक झुंड है। You and I are from the race of faith. आप और मैं विश्वास के झुंड से हैं। Say, I am on the race, in the race of faith. आप कहे कि मैं उस विश्वास के झुंड से हूं। I will run with faith. मैं विश्वास के साथ दौड़ूंगी, I will run with patience. धीरज के साथ दौड़ूंगी। We will end with Hebrews chapter 12 verse 1. इब्रानी 12:1 को देखेंगे। In Hebrews 11 it talks about people of faith. और इब्रानी के 11वें अध्याय जो है वो विश्वास के लोगों के बारे में बात करता है। I would have added one more sentence. By faith they slew giants. और मैं एक और वचन शायद जोड़ देती कि विश्वास के द्वारा ही उन्हें दानवों को हरा दिया।
You can't bring a giant down without faith. विश्वास के बिना आप कोई दानव को हरा नहीं सकते। It mentions David. और दावीद के बारे में विवरण किया है। So many people are surrounding all of us. और कितने सारे लोग यहाँ चारों तरफ हमें घेर के खड़े हैं। What do we mean by that? इसका अर्थ क्या है? Hebrews 12:1 says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. और इब्रानी 12:1 में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। There's a cloud of witnesses. और ऐसे गवाहों की बड़ी एक बादल है। It's like a stadium where you run a race. मान लो एक स्टेडियम है जहां पे आप दौड़ लगा रहे हो। And all these are witnesses. They are looking at us. और ये सारे गवाह है जो हमारी तरफ देख रहे हैं। There is Caleb. और केलेब है। There is Othniel. ओथनिएल है। There is David. दावीद है। They fought the giants. उन्होंने दानवों से लड़ाई की And थी। they're looking at us और वो हमारी तरफ देख रहे in a हैं। race of life. और हम हमारे जीवन की इस दौड़ की तरफ। And we have, and it says that, and let us run with endurance the race that is set before us. और वो कहता है कि पूरे धीरज के साथ हम ये दौड़ लगाए जो हमारे सामने रखी है। Looking unto Jesus, यीशु के सामने देखकर, the author and developer of our faith. जो हमारे विश्वास का आदि और अंत है। Who develops your faith? और कौन आपके विश्वास को बेहतर बनाता है? Jesus. यीशु। When we were young, we used to have photographs which had negatives, and you had to develop it. और हम जब छोटे थे तो ऐसे फोटोग्राफ्स होते हैं जिसके नेगेटिव पहले बनती थी, फिर आपको उसको डेवलप करना पड़ता था। So you may have begun with a negative, but God is developing your faith. शायद आपकी शुरुआत एक नेगेटिव से हुई होगी, लेकिन परमेश्वर आपको बेहतर बनाते जा रहा है। Steadily and slowly, He is developing your और faith. स्थिरता के साथ, धीरज के साथ वो आपको तैयार कर रहा है। Jesus is so patient with you. और यीशु आपके साथ इतना धीरज रखता है। He's so patient with me. इतना धीरज रखता है मेरे He's साथ। developing my faith. वो मेरे विश्वास को बेहतर बना So रहा I look है। unto Him, तो आप उसके पास आए, who for the joy that was set before Him, और He जो- endured the cross. और जो आनंद उसके सामने ठहराया हुआ था उसने अपने वो क्रूस को भी सह लिया। So I will endure my race of faith. मैं अपने विश्वास की इस दौड़ में धीरज रखूंगी। I will throw away the things which don't allow me to run fast. और ऐसी कोई भी वस्तु जो मुझे तेजी से दौड़ने की अनुमति नहीं देते, उन्हें मैं फेंक देती हूँ। I will come out of things which entangle me. और जो बातें मुझे ऐसे झंझोड़ कर रखती है, उन बातों को फेंक देती हूँ। I will run with faith.